Hello and welcome to the YouTube channel of Vidiculture. Today we will talk about the term contract and here we will study that what do we understand by contract कि आखिर ये contract होता क्या है, that we will study today. And from where we have got this term and हमारे लिए important क्यों है, because we have to study the Indian Contract Act. Indian Contract Act 1872. When we are preparing for any legal examination, then we have to cover this subject. This is very important and a lot of question come from this particular subject. So before going into this subject, we must understand that what is the contract. आखिर contract होता क्या है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि contract क्या है. So in that we will see. So the first one is that what is contract. तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें इसकी, इफ यू लुक एट द बेसिक डेफिनेशन विच इज गिवन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H, if we look at this particular section, then it simply says an agreement enforceable by law. Okay, or we may understand it like this ki a contract is anything that is an agreement and enforceable by law of the land. Means कि ये एक प्रकार का एग्रीमेंट ही है, इट्स एन एग्रीमेंट, बट इट ऑल्सो हैविंग द एनफोर्सिबिलिटी फैक्टर इन इट. ठीक है, तो इट इज बेसिकली व्हाट इट इज अ अग्रीमेंट. अग्रीमेंट है प्लस देयर इज एन enforceability factor added to this, and this both together becomes a contract. So स्टिल हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि भाई अब ये एग्रीमेंट क्या है. जब हमें तो समझ आता है कि भाई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज है या फिर देखने में एक जैसी लगती है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस. सो यहाँ पे हमने देखा है कि सिंपली कहता है एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ. कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल है लॉ के अंदर, तो उसको हम सिंपली कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट. तो फिर हम देख लेते हैं दैट व्हाट इज एन एग्रीमेंट. अब एग्रीमेंट क्या होता है पहले ये समझ ले. हमने ये तो समझ लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग व्हिच इज एन एग्रीमेंट and having the enforceability factor in it. So now understand what is an agreement. Agreement क्या है? So it says every promise and every set of promises, ठीक है? Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. So basically it is nothing but promise, or you can say promises, promise or promises plus consideration. This both becomes agreement when both the parties promise to each other about something and along with the consideration. जब consideration भी साथ में आ जाता है, then we call it an agreement. अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए we can look at the some example by which we can understand it better. So if we look at this particular example, अगर हम इस example को देखें तो ये कहता है A promises to B, A जो है वो B को promise करता है to sell his laptop for rupees 25,000, 25,000 रुपए का लैपटॉप बेचने की बात यहाँ पर करता है. एंड B accepts to purchase it for the said amount. एंड यहाँ पे B जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, कि आई विल बाय दिस इन 25,000. सो इट विल बिकम एन एग्रीमेंट. ये क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये एग्रीमेंट. अगर इसको हम और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भाई अब कंसिडरेशन क्या है. अब हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है. तो कॉन्ट्रैक्ट देखा तो उसके अंदर लिखा था कि इट्स एन एग्रीमेंट अलोंग विद एनफोर्सिबिलिटी फैक्टर. Then we studied the agreement. Agreement क्या है? It's a kind of promise or promises made by the parties along with the consideration. Now we have to understand कि भी consideration क्या है. What is consideration? Consideration से हमें क्या समझ आता है? So when we look at this consideration, then it says when at the desire of the promiser and promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. So basically there are again certain terms which you may or may not be understanding, that I will tell you definitely that what do we understand by promiser, promisee, who is promisee. I'll tell you everything in detail. So before that, as we have read this, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि या तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मान लीजिए कि इफ आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग विद यू और आई एम मेकिंग एन एग्रीमेंट, देन आई मे desire to promise you something, or you want some kind of promise from my side, or it can be something कि भाई मुझे कुछ करने के लिए वो प्रॉमिस करना हो, या फिर कुछ ना करने के लिए प्रॉमिस करना हो। ठीक है, तो उसको हम कंसिडरेशन यहाँ पे कह देते हैं। अब इसको भी हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एक एग्जाम्पल के तहत। हो सकता है आपको वो जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट व्हेन वी लुक एट दिस एग्जाम्पल इट विल मेक इट वेरी 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 क्लियर, आपको बहुत ही क्लियर कर देगा। इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल, इट सेज ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी। ए जो है वो बी को यहाँ पे ऑफर करता है दैट आई विल गिव यू दिस कार एट सर्टेन कॉस्ट दैट इज सम ऑफ रुपीज 1 लाख। बी एक्सेप्ट द ऑफर, बी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर, ओके आई विल बाय दिस कार एट एट रुपीज 1 लाख। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में किसका क्या रोल है? अब यहाँ पे ए जो है वो है प्रोमिसर। ठीक है, द पर्सन हु इज गिविंग द ऑफर, द पर्सन ए हु इज गिविंग द ऑफर इज अ प्रोमिसर, इसको हम कहेंगे प्रोमिसर। ए इज प्रोमिसर एंड इट इज हिज डिजायर टू सेल हिज कार फॉर रुपीज 1 लाख। और यहाँ पे इसकी डिजायर है कि मैं 1 लाख रुपए में अपनी कार बेचूंगा। देन उसके बाद आता है बी। बी इज द प्रोमिसी, बिकॉज बी इज द वन हु विल आइदर एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ ए, ओके, आइदर एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ ए और रिजेक्ट द ऑफर ऑफ बी। सो ए, तो यहां पे इसको हम कह देते हैं ही इज सेड टू बी द प्रोमिसी, इसको हम कह देते हैं प्रोमिसी। सो बी इज द प्रोमिसी एंड ऑन डिजायर ऑफ ए ही इज परचेजिंग द कार फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है, और ये ए के डिजायर पे 1 लाख रुपए में उसको खरीदते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कंसिडरेशन किसके लिए क्या कंसिडरेशन होगा। तो इफ यू लुक एट द कंसिडरेशन पार्ट हेयर, द कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस, ए के प्रॉमिस का कंसिडरेशन क्या है? इज अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज। ए ने प्रॉमिस किया मैं तुम्हें क्या दूंगा? कार दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके बदले में कंसिडरेशन क्या लूंगा? 1 लाख रुपीज। वाइल कंसिडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस इज द कार। अब इसके लिए बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? बी के लिए कंसिडरेशन है कार, किसके बदले? क्या प्रॉमिस के बदले? 1 लाख रुपीज के बदले। ठीक है, 1 लाख रुपीज के बदले यहाँ पे इसको मिली कार। तो कंसिडरेशन ऑन पार्ट ऑफ ए के प्रॉमिस के लिए क्या कंसिडरेशन है? 1 लाख रुपीज, एंड फॉर बी इट इज द कार विच ही इज गेटिंग आफ्टर गिविंग द 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आपको तीनों चारों चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को अगर समझाऊं, तो शुरू से समझना है। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई प्रॉमिसर कौन है। सॉरी, जस्ट लुक एट फर्स्ट कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ए जो है वो बी को एक ऑफर देते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द ऑफर? दैट आई विल गिव यू माय मोटर बाइक, फॉर एग्जांपल बाइक बाइक एट रुपीज 10,000 10K। ओके, यहाँ पे ये ऑफर है, ए करता है। तो जब ए यहाँ पे ऑफर दे रहा है, देन ए क्या कहलाएगा? ए इज नथिंग बट promiser। ओके, ही इज promiser। वाइल बी क्या है यहाँ पे? अगर ये एक्सेप्ट करते हैं देन ही विल बिकम promisee, द वन हु एक्सेप्ट्स द ऑफर बिकम्स promisee। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए promisee, पहली चीज ये। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज को। ठीक है, तो दिस विल बिकम अ एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड अब यहाँ पे बात आती है कंसिडरेशन की, कि भाई आखिर ये कंसिडरेशन क्या होगा फिर यहाँ पर। तो अगर हम कंसिडरेशन को देखें, तो फॉर ए व्हाट इज द कंसिडरेशन? ए के लिए कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे? 10,000 रुपीज। एंड फॉर बी, बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? बी के लिए जो कंसिडरेशन होगा वो होगा बाइक, किसके बदले? जो उसने पैसे दिए हैं उस बात के बदले। तो हमें यहाँ पे समझ आया व्हाट इज प्रॉमिस, व्हाट इज प्रॉमिसी, व्हाट इज कंसिडरेशन। वी हैव अंडरस्टूड दीज टर्म्स। और जब हमें ये समझ आ गया कि भाई कंसिडरेशन क्या है, जब कंसिडरेशन समझ आ गया तो एग्रीमेंट समझ आ गया, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या लिखा है? दैट अग्रीमेंट में लिखा है कि भाई प्रॉमिस और प्रोमिसेस, ठीक है, प्रॉमिस और प्रोमिसेस to do something or not to do something along with the consideration।
consideration, it becomes an agreement. And when this, agreement is added with enforceability factor, enforceability जब इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये यहाँ पे बन जाएगा, it will become a contract. सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट. तो हमें बेसिकली यहाँ पे समझ आया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज कंसिडरेशन, व्हाट इज हु इज द promisee, who is the promiser. So I hope you all have understood this. So we will keep on, getting more videos on this particular subject, that is Indian Contract Act. This was just a basic, it's a basic video just to make you understand that कि what is contract exactly क्या होता है, उसकी एक basic definition और उसका क्या मतलब है. That is only which I have taught you. There is a lot of things which is still left in the contract, which I will come up in the next upcoming videos, जिसके अंदर के हम explain करेंगे बाकी सारी चीजें contract act से related. So thank you so much everyone for joining. Bye bye, take care.